السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں نادیہ خان اور میں ہوں ماہین سید۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ گرین ٹاؤن میں یکے بعد دیگرے 2 بینک ڈکیتیاں، 1 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے۔ اے بی ایل کے بعد یو بی ایل کا بھی صفایا، ڈاکو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ساتھ لے گئے۔ شادرہ خیمہ دفتر میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، 30 کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف ترقیاتی اسکیموں کی منظوری۔ میاں شہباز شریف کا شادرہ میں زیر تعمیر ہسپتال اور قرآن کمپلیکس کی تعمیر کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے الفا کریم پارک میں بین الاقوامی آئی ٹی کمپنی ٹیرا ڈیٹا کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ ادھر حکومت پنجاب کی 4 سالہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے گورننس فورم 2012 کا انعقاد۔ لیسکو ڈویژن کی سرویلنس ٹیم کی کارروائی، پنجاب اسمال انڈسٹری کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیم کے متعدد گھروں اور گرینڈ شالیمار سنیما میں لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑ لی۔ شہر میں لگائے جانے والے رمضان بازاروں کے انتظامات مکمل، کمشنر کا ڈی سی او اور ایم این اے بلال یاسین کے ہمراہ دورہ، جبکہ کم تولنے والے دکانداروں کو پکڑنے کے لیے لیبر آفیسرز اور انسپیکٹرز کو انسپیکشن کٹس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ آئی جی پنجاب کا ایلیٹ فورس کے تمام اہلکاروں کو سیکیورٹی اور نان آپریشنل ڈیوٹی سے واپس بلانے کا حکم، جبکہ رمضان المبارک میں 8000 اضافی اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ ایل ڈی اے کے قابضین کے خلاف کارروائی، ملازمین کی رہائشی اسکیم میں شامل موسیٰ مسلح کی 33 کنال اراضی واگزار۔ الخدمت ٹیچنگ منصورہ ہسپتال میں 3 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کردہ ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح، جبکہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور پلان انٹرنیشنل کے تعاون سے نابالغ بچوں کو درپیش مسائل کے موضوع پر ورکشاپ۔ اوگرا کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، شہر میں ایل پی جی 105 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ لوئر ماہ نامعلوم افراد کی فائرنگ، آڈیٹڈ اکاؤنٹس یونین کے صدر بخش الہی قتل، اے جی آفس ملازمین کا مال روڈ پر احتجاج اور دھرنا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیٹا ایکٹ کا ترمیمی بل منظور کر لیا گیا، 35 میں سے 20 سوالات اراکین کی عدم موجودگی پر نمٹا دیے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 1 کروڑ 45 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی جامع مسجد ہائی کورٹ کا افتتاح کر دیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آل پاکستان پارلیمنٹری ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ کا انعقاد، ادھر کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام بی ایف اے فائنل ایئر کے طلباء اور طالبات کے تھیسس کی نمائش۔ پاکستان رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب، سوڈان کے سفیر الشافی احمد محمد کی خصوصی شرکت۔ قومی ہیرو بینیفٹ دنگل بشیر بھولا بھال نے تحسین پہلوان کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن نے دوسری ایشین ماسٹر اسکواش چیمپئن شپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا، انٹری کی آخری تاریخ 3 اگست مقرر۔ رائل پالم کلب میں سروس سیلز کارپوریشن اور برٹش کاؤنسل کے اشتراک سے سروس فن اینڈ لرن مہم کا آغاز، مختلف اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ کی شرکت۔ اور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گرین ٹاؤن میں صرف 150 میٹر کے فاصلے پر 2 بینک لوٹ لیے گئے۔ صبح الائٹ بینک سے 4 ڈاکو 45 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے اور دوپہر کے وقت 4 ڈاکو یو بی ایل سے 55 لاکھ لے اڑے۔ ملزمان دونوں بینکوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ساتھ لے گئے۔
لاہور میں گزشتہ سال 22 فروری سے بینک ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ وارداتیں تھمنے میں نہیں آ رہی۔ کچھ دن کے سکون کے بعد ایک ہی دن میں پاس واقع 2 بینک لوٹ لیے گئے۔ گرین ٹاؤن میں واقع لائٹ بینک میں صبح 4 ڈاکو داخل ہوئے اور 45 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جاتے ہوئے وہ CCTV کیمروں کی فوٹیج کا کارڈ بھی ساتھ لے گئے۔ اس واردات میں ڈاکو نے صرف ایک چھری استعمال کی اور پورے بینک کا صفایا کر دیا۔ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا کہ بینک کا ایک گارڈ نجات خان بھی اس واردات میں ملوث ہے۔ الائٹ بینک سے تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پر یونائیٹڈ بینک واقع ہے۔ ابھی پولیس الائٹ بینک کی ڈکیتی کے شواہد اکٹھے کر کے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ 4 ڈاکو UBL پہنچ گئے۔ انہوں نے اسلحے کے زور پر سیکیورٹی گارڈز کو بے بس کیا اور چند منٹ کے اندر 55 لاکھ روپے لے کر چلتے بنے۔ یہاں بھی ملزمان نے ABL کی طرح CCTV فوٹیج کا کارڈ نکال لیا اور جاتے ہوئے بینک کے مرکزی دروازے کو وائر لاک سے بند کر گئے۔ بینک حکام کے مطابق ڈاکو چھوٹے قد کے تھے اور آپس میں پشتوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ ASP ٹاؤن شپ فدا حسین کا کہنا ہے کہ اگر سیکیورٹی گارڈ ایک فائر بھی کر دیتا تو یہ واردات ناکام بنائی جا سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پہلو پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ جب کسی بینک میں 25 لاکھ روپے سے زائد کیش رکھنے کی اجازت نہیں تو ان دونوں بینکوں میں کیوں اتنی زیادہ رقم موجود تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد سائی، سٹی 42۔ پنجاب حکومت نے 30 کروڑ روپے سے شاہدرہ میں انڈر پاس، تفریحی پارک اور فلٹر پلانٹ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہدرہ میں لگائے جانے والے ٹینٹ آفس میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے علاقے کی معزز شخصیات نے ملاقات کی۔ ممبر قومی اسمبلی ملک ریاض، ممبر صوبائی اسمبلی رانا محمد اقبال خان، MD واسا، DG PHA، DCO لاہور اور متعلقہ افسران بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ پنجاب حکومت شاہدرہ میں 30 کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف ترقیاتی اسکیموں کا آغاز کرے گی۔ میاں شہباز شریف نے بتایا کہ شاہدرہ میں عوام کو تفریحی سہولتوں کی فراہمی کے لیے بہترین پارک بنایا جائے گا اور علاقے میں ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات سمیت 5 واٹر فلٹر پلانٹس فوری طور پر لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے زیر تعمیر گورنمنٹ شاہدرہ ہسپتال کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ YDA کی اکثریت حکومت کے ساتھ ہے۔ مٹھی بھر نوجوانوں نے ڈاکٹروں کے مقدس پیشے کو بدنام کیا ہے۔ شاہدرہ میں ہسپتال کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے موقع پر DCO نور الامین مینگل اور مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ سلمان رفیق بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر اعجاز نے وزیر اعلیٰ کو تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ 7 ایکڑ رقبے پر بننے والے 300 بستروں پر مشتمل 4 منزلہ ہسپتال پر 1 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ہسپتال کی تعمیر نومبر تک مکمل کر لی جائے گی اور اس میں جدید مشینری نصب کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہسپتال کے تعمیراتی کاموں کے معیار پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہسپتال کی تعمیر سے شاہدرہ جیسے پسماندہ علاقوں کے عوام کو علاج معالجہ کی بہترین سہولتیں میسر آ سکیں گی۔ لیسکو ڈیفنس ڈویژن کی سرویلنس ٹیم نے بیدیاں روڈ سب ڈویژن کی حدود میں پنجاب اسمال انڈسٹری کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیم کے متعدد گھروں جبکہ گرینڈ شالیمار سنیما کے لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑ لی۔ ایکسین ڈیفنس خالد سعید کی ہدایت پر SDO فیاض احمد نے عملے کے ہمراہ بیدیاں روڈ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑ لی۔ حکام کے مطابق پنجاب اسمال انڈسٹری کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیم میں متعدد گھروں میں بجلی چوری پکڑی گئی۔ ہاؤسنگ اسکیم مین سپلائی لائن سے کنڈے لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے کمپنی کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ حکام نے چھاپہ مار کر سینکڑوں فٹ غیر قانونی تار قبضے میں لے لیے جبکہ قانونی اور محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہاؤسنگ اسکیم کے بعض حصوں میں بجلی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے رہائشیوں نے عملے کی ملی بھگت سے بجلی چوری کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ دوسری جانب سرویلنس ٹیم نے گرینڈ شالیمار سنیما میں بھی بجلی چوری پکڑ لی۔ حکام کے مطابق صارف میٹر کی اسکرین واش کر کے بجلی چوری کر رہا تھا اور اسے کئی ماہ سے یونٹس چارج نہیں کیے جا رہے تھے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے رائے ون روڈ پر واقع 33 کنال اراضی واگزار کرا لی۔ LDA حکام کے مطابق اراضی کو تعمیراتی کام کے لیے انجینئرنگ ونگ کے حوالے کیا جائے گا۔ آپریشن میں LDA کے انفورسمنٹ اور اسٹیٹ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایونیو 1 کے عملے نے بھاری مشینری کے ساتھ مشترکہ طور پر حصہ لیا۔
LDA हुक्काम के मुताबिक रायवेंड रोड पर वाक़ सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी स्कीम LDA एवेन्यू 1 के D ब्लॉक में शामिल मुज़ा मुसला पर अरसा दराज से मसीही बरादरी के चंद ख़ानदान गैर कानूनी तौर पर काबिज थे, जिन्हें बार बार इंतबा जारी किया गया लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद मजबूरन ऑपरेशन करना पड़ा। हुक्काम के मुताबिक वागुजार कराई गई अराजी पर तामीराती काम शुरू करने के लिए LDA के इंजीनियरिंग विंग के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि LDA की तरफ से 3 मई 2012 को नासिरगंज में वागुजार कराई गई 250 कनाल ज़मीन पर तामीराती काम शुरू कराया जा चुका है। दिन भर हब्स और गर्मी की शिद्दत के बाद शाम के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम कदरे बेहतर हो गया। दिन के वक्त हब्स और शदीद गर्मी से शहरी बेहाल नजर आए। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तहम शाम के औकात में शहर के कई इलाकों में बारिश हुई और हल्की हवा चलने से मौसम कदरे खुशगवार हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट और इससे मुहल्लिका इलाकों में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 58% रहा। महकमे मौसमियात ने अगले 12 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। मॉनसून का आगाज होते ही गोया उदास और मुर्दा दिलों की खेती फिर से लहलहाने लगती है। बारिश से जहां शहर के दरो दीवार पर निखार आ जाता है, वहीं मुरझाए चेहरे भी खिल उठते हैं। अरकान असेंबली बरखा रुत से किस तरह लुत्फानंदोज होते रहे, बता रही हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। बरसात की बारिश में जहां चिरिंद परिंद और बैल बूटे खिल उठते हैं, वहीं इंसान भी इससे महजूज हुए बगैर नहीं रह सकते। अरकान पंजाब असेंबली बरखा रुत को किस तरह इंजॉय करते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जैसे बाकी लोग करते हैं, यकीनन बारिश के बाद एक एहसास होता है, खुलीपन का एहसास होता है, बारिश रहमत होती है। बच्चों की ख्वाहिश हो उसके मुताबिक वो पकौड़े हो, समोसे हो, जो वो चाह रहे हो उनको बना के, तो ताकि वो भी एंजॉय कर सके। मैं समझती हूँ अच्छे स्पाइसी खाने हो और फिर सब मिल के खाएं। गर्मी थी और गर्मी का जोर टूटा बारिश से, तो मेरे तो बच्चों ने जी मुझे स्पेशल गाड़ी चलवाई मुझसे, मैंने ड्राइव की और अपने बच्चों को लेकर गई हूँ रीगल। वहाँ पर हमने जी चाट खाई है, चमन की आइसक्रीम खिलाई बच्चों को और मैंने बड़ा इंजॉय किया। वो जो जवानी के दिन थे उस वक्त कहते थे दिल तोड़ के मैं सजाइयो बरसात का मौसम है, भीगा जो बदन मेरा जल जाएगा तन तेरा, कुछ देर तो रुक जाइए बरसात का मौसम है। ख्वाहिश होती है कि काश ये पानी ना खड़ा और हम भी अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के इसको एंजॉय करें, जलेबियाँ खाएं, पकोड़े खाएं, व्हाटएवर जो भी खाया जाता है। कुछ ज़्यादा अगर हो तो वो पकोड़े ज़रूर बनते हैं घर में। चले भी जाते हैं और समटाइम कोई अच्छी पकोड़े समोसे खा लेते हैं, बस इसी तरह। फैमिली के साथ कोई मैंगो पार्टी, कोई छोटा मोटा, फिर वो इस तरह की फंक्शन घर में हो भी जाता है। बरखा रुत बहार हो या रिमझिम, कोई काफिर ही होगा जो भीगे मौसम का मजा न ले। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ उमर असलम, सिटी 42 पंजाब असेंबली। कौमी हीरोज बेनिफिट दंगल बशीर भोला भाला ने जीत लिया। टाइटल मुकाबले में तहसीन पहलवान को 4 मिनट में शिकस्त देकर अपनी बढ़तरी कायम रखी। गुलकार तारिक ताफू ने फन का मुजाहरा करके देसी कुश्ती के शायकीन को भरपूर तफरीह फ्राहम की। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं एजाज वसीम बाकरी। इकबाल पार्क रेसलिंग स्टेडियम में होने वाले कौमी हीरोज बेनिफिट दंगल में टाइटल कुश्ती समेत छोटे जोड़ों के 7 मुकाबले हुए। रोस्तम में पाकिस्तान बशीर भोला भाला ने टाइटल कुश्ती में पाकिस्तान आर्मी के तहसीन पहलवान को यकतरफा मुकाबले में 4 मिनट में चित करके अपनी बढ़तरी कायम रखी। बशीर भोला भाला को जीत पर 1 लाख जबकि तहसीन पहलवान को 50,000 रुपए की इनामी रकम दी गई। बशीर भोला भाला का कहना है कि वो अभी भी पूरी तरह फिट नहीं, भारतीय पहलवानों से मुकाबला करने के लिए कम अज कम 3 माह का वक्त दरकार है। देखें जी कि मैं बिल्कुल अनफिट हूँ और मैं जिस दिन भी जिसने मेरे से बात करनी ना मुकाबला लड़ने के लिए, मैं उनसे 3 महीने लूँगा। उस दिन 3 महीने के बाद मैं इंडिया का जो भी पहलवान होगा मैं उससे लड़ूंगा और इंशाल्लाह ताला मैं जीतूंगा।
हुकूमत को तो ज़्यादा चाहिए ना, हुकूमत को जितना, ये हमारा पुराना गेम है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस रेसलिंग में मेडल आए हैं पाकिस्तान के लिए, जितना ज़्यादा इसको प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना मुल्क के लिए अच्छा होगा। दंगल के दौरान गुलकार तारिक ताफू ने अपने फ़न का मुजाहरा करके शायकीन को खूब महसूस किया। कौमी हीरोज़ बेनिफिट दंगल में छोटे जोड़ मुकाबलों में वहीद पहलवान ने जहांगीर पहलवान, नदीम गुज्जर ने इमरान गुज्जर, अच्छी पहलवान ने स्टार पहलवान, बिलाल पहलवान ने मुस्तफ़ा पहलवान और पप्पू पहलवान ने मालू पहलवान को शिकस्त दी। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इस दंगल से बहुत से बासलाहियत पहलवान सामने आए हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने कहा है कि शहर में कायम किए जाने वाले 28 रमज़ान बाज़ारों में इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहरियों को सहूलियात फराहम न करने वाले अफसरान ज़िला इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं रहेंगे। शहर के मुख्तलिफ टाउन्स के ज़रिए इंतज़ाम कायम किए जाने वाले रमज़ान बाज़ारों के दौरे के मौके पर कमिश्नर जवाद रफीक मलिक के हमरा MNA बिलाल यासीन, एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर उस्मान, DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल, TMO दाता टाउन मोहम्मद आरिफ, TMO समनाबाद इम्तियाज़ अवान समेत दीगर अफसरान भी थे। कमिश्नर ने रुकन कौमी असम्बली अफसरान के हमरा शादमान रमज़ान बाज़ार, वहादत कॉलोनी, नदीम शहीद रोड और सब्ज़ाज़ार रमज़ान बाज़ार का दौरा किया। कमिश्नर ने रमज़ान बाज़ारों में शहरियों को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात समेत अशाए खुरोनोश की क्वालिटी और इनकी वाफिर मिकदार में मौजूदगी का जायज़ा लिया। रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत रमज़ान बाज़ारों के क़याम से शहरियों को महंगाई के दौर में हकीकी रिलीफ फ्राहम कर रही है। कंट्रोलर पंजाब ओसानो पैमाइश मसूद अहमद तारिक का कहना है कि रमज़ान बाज़ारों में पूरा नाप तोल यकीनी बनाया जाएगा। कम तोलने वाले दुकानदारों को जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। न्यू मुस्लिम टाउन में वाक़ डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल लेबर वेलफेयर ऑफिस के ज़ेली इदारे ओसानो पैमाइश का इजलास मुनक्किद किया गया। कंट्रोलर पंजाब ओसानो पैमाइश मसूद अहमद तारिक की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कंट्रोलर दाऊद अहमद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर अरशद महमूद तारड़, असिस्टेंट डायरेक्टर मियाँ जावेद, इरफान यूसुफ, जवाद कादिर, सरार हुसैन और इरफान बारी ने शिरकत की। मसूद अहमद तारिक ने कहा कि इंस्पेक्टर लेबर ऑफिसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को अशाए खुरोनोश की पैमाइश के लिए 50 इंस्पेक्शन किट्स फ्राहम की जा रही हैं। इंस्पेक्शन किट्स के जरिए रमज़ान बाज़ारों में कम तोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान अफ्तारी के वक्त 1500 वार्डन सड़कों पर ट्रैफिक बहाल रखने के लिए ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि CTO समेत ट्रैफिक पुलिस के तमाम अफसरान खुद भी अफ्तारी के वक्त सड़कों पर मौजूद होंगे। CTO डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के वक्त शहर में ट्रैफिक बहाल रखने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 1500 वार्डन्स अफ्तारी के वक्त ट्रैफिक की रवानी के लिए सड़कों पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वार्डन्स को ड्यूटी पर ही अफ्तारी का सामान फ्राहम किया जाएगा। CTO समेत तमाम DSP और SP खुद भी वार्डन्स के साथ सड़कों पर अफ्तारी करेंगे। कुर्बान पुलिस लाइन्स में डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। SP मुजाहिद रुमैल अकमर की हिदायत पर कुर्बान लाइन्स की तमाम बैरक्स और रिहाइश गाहों में डेंगू के तदारुक के लिए स्प्रे किया गया। स्प्रे के दौरान मुख्तलिफ बैरकों में रखे गए पुराने टायर भी उठवा दिए गए। SP मुजाहिद रुमैल अकरम ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए हर हफ्ते कम अज़ कम एक हफ्ता स्प्रे किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में बैनुल-अक़वामी IT कंपनी टेरा डेटा के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ यूरोप और अफ्रीका के लिए टेरा डेटा के सदर हरमिन विमर, मैनेजिंग डायरेक्टर बराए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश खुरम राहत के अलावा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, IT स्कॉलर्स और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टेरा डेटा कंपनी का इफ्तिताह IT की फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। उन्होंने कहा कि सूबाई दारुल-हुकूमत में मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है, जिसका बिल पंजाब असम्बली ने पास कर दिया है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के ज़रिए तमाम BFA फाइनल ईयर के तलबा और तालिबात के थीसिस डिस्प्ले किए गए। मज़ीद बता रही हैं इमन ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में वाक़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के 4th ईयर के तलबा तलबात के थीसिस की नुमाइश की गई, जिसमें कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर राहत नवीद मसूद, असातिज़ा और तलबा तलबात ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर राहत नवीद मसूद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उनका कहना है कि दीगर शोबे ज़वाल का शिकार है, लेकिन फ़नून लतीफ़ा का शोबा तरक्की कर रहा है। विजुअल आर्ट्स के हवाले से हमारा जो काम है आर्टिस्ट का, हमारे पेंटर्स का, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में उसने एक अपना मकाम पैदा किया है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी आर्ट इज़ गोइंग इंटरनेशनल। नुमाइश में 13 तलबा तलबात की पेंटिंग्स और 8 तलबा के स्कल्पचर्स रखे गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के जरिए ज़िंदगी और माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। मेरा टॉपिक है रिदम और मैंने उसको कोन्स के साथ शो करवाया, क्योंकि कोन्स में भी एक पूरी डेप्थ है। कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जो है हर इंसान एक तलाश में है, और चाहे वो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो। थीसिस के दौरान जो मेरी टेंशन्स थी और जो कुछ था वो मैंने आर्ट के थ्रू जो है रिलीज़ किया मैंने। नुमाइश में शरीक अफराद का कहना था कि फ़न और फनकार मुल्क की सकाफत के सफ़ीर हैं और नौजवान आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करके दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया जा सकता है। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एजी ऑफिस के मुलाजमीन का एहतजाज नया रुख इख्तियार कर गया। नामालूम अफराद की फायरिंग से ऑडिट एंड अकाउंट्स यूनियन के सदर और एजी ऑफिस के सीनियर ऑडिटर इलाही बख्श हलाक हो गए, जिस पर हड़ताली मुलाजमीन ने माल रोड पर रैली निकाली और धरना दिया। वसीम रियाज की रिपोर्ट। 59 साल बख्श इलाही अकाउंटेंट जनरल पंजाब के दफ्तर में सीनियर एडिटर और ऑडिट एंड अकाउंटेंट यूनियन के सदर थे। इनको इस्लामपुरा में वाक़या रिहाइशगाह से दफ्तर जाते हुए आउटफॉल रोड पर निशाना बनाया गया। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और म्यू अस्पताल में दम तोड़ गए। इनके साथियों का कहना है कि मरने से कबल बख्श इलाही ने फायरिंग का जिम्मेदार अकाउंटेंट जनरल पंजाब को करार दिया। आखिरी वक्त तक भी वो उनके जो कातिल हैं उनके नाम बताते रहे हैं और उनका तमाम डाटा भी मौजूद है। वो बेटा उनका बता रहा है कि आखिरी दम तक मुझे ये कहते रहे कि बेटा असलम 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 को माफ़ न करना। बख्श इलाही के कत्ल की खबर सुनते ही इनके साथी अस्पताल पहुंच गए, जबकि एजी ऑफिस के मुश्तिल मुलाजमीन ने माल रोड पर रैली निकाली और जीपीओ चौक पर धरना दिया। इन्होंने शदीद नारेबाजी की। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस की तरफ से गैर जानिबदार तफ्तीश की यकीन दहानी पर एजी ऑफिस के मुलाजमीन मुंतशिर हो गए। एजी ऑफिस के जो एक लीडर थे बख्श इलाही, उनका मर्डर हुआ लोअर माल पुलिस स्टेशन के इलाके में। उसके सिलसिले में ये बाकी मुलाजमीन जो हैं ये एहतजाज कर रहे हैं। हमसे इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी ये 5-10 मिनट तक रोड की इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम लेके इनको जो भी इनके मुतालबात हैं FIR के रजिस्ट्रेशन हम उनको लेके जा रहे हैं। उसके लिए मकतूल बख्श इलाही की रिटायरमेंट में सिर्फ 5 माह बाकी रह गए थे और वो एजी ऑफिस के मुलाजमीन के ऑडिट अलाउंस की बहाली की जद्दोजहद में मसरूफ थे। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले मातहत अदलिया के 5 जजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अत्ताब बंदयाल की सरबराही में मुनक़िदा एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के इजलास में जस्टिस ज़कीर अहमद कादरी, जस्टिस नासिर सईद शेख, जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद इम्तियाज़, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने सूबे भर की मातहत अदालतों के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इजलास में मिसकंडक्ट पर सीनियर सिविल जज राना मोहम्मद खान को जबरी रिटायर, जबकि सेशन जज मोहम्मद मसरूर जमान और एडिशनल सेशन जज राजनपुर एहसन महबूब बुखारी को सजा देने के लिए हतमी शोकास नोटिस जारी किए गए। कमेटी ने एडिशनल सेशन जज लाहौर जुबैर शहजाद कयानी और एडिशनल सेशन जज जामपुर सदाकतुल्लाह खान को मामूली सजाएं सुनाई, जबकि सेशन जज मोहम्मद असलम, सीनियर सिविल जज गुलजार अहमद, सिविल जज जावेद आलम और खालिद याकूब के अलावा महकमाना कार्रवाई रोकने का भी फैसला किया गया। पंजाब असम्बली ने पुलिस एहलकारों को पीडा एक्ट से इस्तिस्ना का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, जबकि निजी तालीमी इदारों की हौसला अफजाई पर मुस्लिम लीग नून के शेख अलाउद्दीन अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। इजलास की मजीद कार्रवाई जानते हैं अली अकबर से उनकी इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खां की सदारत में 2 घंटे 10 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान ने वक्फ़ा सवालात में बताया कि सूबे में सबसे ज़्यादा निजी स्कूल लाहौर में हैं, जिस पर हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन ने कहा कि हुकूमत जोहर टाउन में गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए किप्स कॉलेज की हौसला अफजाई कर रही है। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने इस पर कहा कि किप्स कॉलेज के तलबा ने बोर्ड में नुमाया पोजीशंस हासिल की
اور کیا شیخ علاؤالدین وزیر اعلیٰ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کپس کالج کے طلبہ کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ میں تقریب کیوں منعقد کی گئی؟ پیپلز پارٹی کی ساجدہ میر نے ایجوکیٹرز کی سیاسی بنیادوں پر بھرتی کا معاملہ ایوان میں اٹھایا۔ وقفہ سوالات میں ارکان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ 35 میں سے 20 سوال متعلقہ ارکان کی عدم موجودگی کی وجہ سے نمٹا دیے گئے۔ لاہور میٹ کمپنی کے حوالے سے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے ایوان میں وضاحت کی کہ لاہور میٹ کمپلیکس کو سربہ مہر نہیں کیا گیا۔ حامد جلیل کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور شوکت بسرا نے اپنی تحریک التوا میں وزیر اعلیٰ کے خاندان کے کسی فرد کا نام نہیں لیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میاں شہباز شریف نے طے کر رکھا ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد حکومتی اداروں کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا۔ اجلاس کے دوران حکومتی رکن میاں رفیق نے اپنے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف واک آؤٹ کیا، جبکہ پیڈا ایکٹ میں ترمیمی بل کی منظوری دی گئی، جس کے بعد اب پولیس اہلکاروں کو مشرف دور میں بننے والے پولیس ایکٹ 2002 کے تحت سزائیں ہوں گی۔ ایوان کی کارروائی مکمل ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرامین ناصر مسعود اور ساتھی رپورٹر عمر اسلم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42 پنجاب اسمبلی۔ سروس سیلز کارپوریشن نے برٹش کونسل کے اشتراک سے بچوں میں انگریزی زبان سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے کے لیے سروس فن اینڈ لرن مہم کا آغاز کر دیا۔ اس مہم کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اظہر علی خان اس رپورٹ میں۔ سروس فن اینڈ لرن پروگرام کی افتتاحی تقریب رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف اسکولوں کی 8ویں جماعت تک کے طلباء اور ان کے اساتذہ نے شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشنل ریفارمز مختار احمد نول، جی ایم مارکیٹنگ سروس سیلز کارپوریشن نیم الاب، پارٹنرشپ ڈیولپمنٹ مینیجر شاہ زیب عارف اور عمیر رانا شریک ہوئے۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سروس سیلز کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو شاہد حسین نے بتایا کہ ان کا ادارہ اپنی سماجی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور اس پروگرام کا مقصد 5 سے 14 سال تک کے بچوں میں انگریزی زبان کو فروغ دینا ہے۔ یہ تقریباً 6 لاکھ CDs تقسیم کی جائیں گی ملک کے تمام کونے کونے میں، جہاں سروس کے سٹورز ہیں اور ہمارے ہول سیل ڈیلرز اور انڈیپینڈنٹ ریٹیلرز ہیں، اور ہماری خواہش ہے اور ہماری امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ایسے علاقوں میں جہاں انگلش لینگویج کی تعلیم آسان نہیں ہے، اس میں بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو بہت مدد ملے گی۔ برٹش کونسل کے ڈائریکٹر مارٹن فرائر نے کہا کہ انگریزی کی تعلیم اس انداز میں دی جا رہی ہے کہ بچے کھیل ہی کھیل میں زبان بھی سیکھ لیں۔ We have access through these branches to hundreds of thousands of young people who are eager to learn, and this is all part of the British Council's commitment in Pakistan to education, particularly at the schools level. تقریب میں شریک بچوں نے فن اینڈ لرن آگہی مہم کو دلچسپ اور مثبت کاوش قرار دیا۔ ہمیں یہاں پہ انہوں نے ڈرائنگ کے لیے پیجز دیا، ہم نے ان پہ ڈرائنگ کی ہے، اب یہ ابھی بھی ہم اپنی ڈرائنگ کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ We learn from here and play here and we enjoy very much. سروس سیلز کارپوریشن اس مہم میں ریاضی سمیت دیگر مضامین کی تعلیم شامل کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ کیمرامین واجد علی کے ہمراہ اظہر علی خان، سٹی 42۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان کا کہنا ہے کہ ایلیٹ فورس کے تمام اہلکاروں کو سیکیورٹی اور نان آپریشنل ڈیوٹی سے واپس بلانے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں 8000 اضافی اہلکار مساجد کی سیکیورٹی پر مامور کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب حبیب الرحمان کی زیر صدارت سی پی او میں اہم اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل آئی جی ملک خدا بخش، انور ورک، نسیم الزمان، سرمد سعید، خان بیگ، ناصر خان دورانی، مشتاق سکھیرا، سی سی پی او اسلم ترین، ڈی آئی جی رائے طاہر، سہیل خان، شکیل مرزا، ڈاکٹر عارف مشتاق، چودھری شفیق، سی ٹی او ڈاکٹر عثمان انور اور ایس ایس پی ایم ٹی سید جعفر عباس شریک ہوئے۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ایلیٹ فورس کو سیکیورٹی اور نان آپریشنل ڈیوٹی سے واپس بلوا لیا جائے اور ان کی جگہ پی ایس کی بٹالین 8 کے اہلکاروں کو ڈیوٹی پر مامور کیا جائے۔ اسی طرح انفرادی طور پر مختلف اداروں اور شخصیات کے ساتھ تعینات گن مینز کو بھی واپس پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ 8000 اضافی اہلکار مساجد کی سیکیورٹی پر مامور کیے جائیں گے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ صوبے کے تمام ہاسٹلز، ہوٹل، نجی اسکول، سرائے پراپرٹی کے دفاتر اور رینٹ کار کے دفاتر کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا جائے، جبکہ ہوٹلز اور ہاسٹلز میں شناختی کارڈز کے بغیر کمروں کی بکنگ نہیں کی جا سکے گی۔
कलेक्टर कस्टम्स लाहौर ने अहम पोस्टों पर तैनात 5 आला अफसरान के तकर्रो तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। DC एयरपोर्ट ट्रैफिक महमूदुल हसन का एली ट्रिब्यूनल में तबादला कर दिया गया है। कलेक्टर कस्टम्स लाहौर फजल यजदानी खान ने डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स अजमत तायरा को कंटेनर्स फ्रेट सर्विस से तब्दील करके एयर फ्रेट यूनिट में तैनात कर दिया है। अरसे दराज से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात डिप्टी कलेक्टर ट्रैफिक महमूदुल हसन को तब्दील करके एपीलेट ट्रिब्यूनल में तैनात कर दिया गया है। मुगलपुरा ड्राईपोर्ट पर तैनात डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद हसन फरीद को तब्दील करके DC कस्टम्स हेडक्वार्टर लगा दिया गया है। नाइमा बतूल को एपीलेट ट्रिब्यूनल से तब्दील करके डिप्टी कलेक्टर मुगलपुरा ड्राईपोर्ट तैनात किया गया है, जबकि AC प्रिवेंटिव अम्मार अहमद को DC एयरपोर्ट ट्रैफिक तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अलखिदमत टीचिंग हस्पताल मंसूरा में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन का कहना है कि इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया जाए। अलखिदमत टीचिंग हस्पताल में डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हस्पताल के ऑडिटोरियम में किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन समेत MS हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर मोहम्मद कमाल, डॉक्टर तारिक शफीक और नर्सिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MS डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने बताया कि अस्पताल में इब्तदाई तौर पर 6 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि हुक्मरानों ने अवाम को बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया जाए, तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल निगरान हुकूमत और वोटर लिस्टों की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और प्लान इंटरनेशनल के ताउन से नाबालिग बच्चों को दरपेश मसाइल के मौजू पर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में सहाफ़त और तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। PC होटल में मुनक़िद होने वाले इस वर्कशॉप में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर रिफत सकलैन, डॉक्टर शीरीन, GOTV के एंकर अब्दुल रऊफ, सिटी 42 के एंकर नजम वली खान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर तनवीर शहजाद, नवीद इकबाल, मोहम्मद ज़ईम समेत प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वर्कशॉप में प्लान इंटरनेशनल की जानिब से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें नाबालिग बच्चों को दरपेश समाजी मसाइल की निशानदही की गई। एंकर पर्सन अब्दुल रऊफ ने कहा कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन और मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। सिटी 42 के एंकर पर्सन नजम वली खान ने कहा कि NGOs नाबालिग बच्चों के मसाइल हल करने के लिए अमली किरदार अदा करें। एमरा के सदर तनवीर शहजाद ने यकीन दहानी कराई कि मीडिया के नुमाइंदे बच्चों की नफ्सियाती, जिस्मानी और जहनी मसाइल के हल के लिए NGOs के साथ ताउन करेंगे। इदारा तालीम व आगाही के ज़रिए तमाम तालीम की अहमियत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम मियाँ मुश्तबा शजाउर रहमान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। हवारी होटल में मुनक़िदा सेमिनार में सेनेटर सादिया इकबाल, सेनेटर नजमा हमीद, बेगम ज़किया शाहनवाज, जस्टिस रिटायर नासिरा जावेद इकबाल, चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन राजा मोहम्मद अनवर और इदारा तालीम व आगाही के डायरेक्टर बेला रज़ा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। बेला रज़ा ने आइन के आर्टिकल 25A के तहत बुनियादी तालीम के हक़ पर बात करते हुए कहा कि पंजाब समेत मुल्क भर में बच्चों को बुनियादी तालीम के हसूल में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत को प्राइमरी एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की तर्ज पर प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए। राजा अनवर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत सूबे भर में 30 लाख बच्चों को मुफ्त तालीम के मौके फराहम किए जा रहे हैं। तालीमी सरगर्मियों पर एक नज़र सिटी तालीम में। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में ऑल पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डिबेटिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से 60 तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में होने वाली ऑल पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डिबेटिंग चैंपियनशिप में उर्दू और अंग्रेज़ी के तकरीरी मुकाबले हुए, जिसमें मुल्क भर से 60 तालीमी इदारों के 80 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। उर्दू तकरीरी मुकाबलों में फास्ट यूनिवर्सिटी, जबकि इंग्लिश तकरीरी मुकाबले में लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के तलबा ने कामयाबी हासिल की। डॉक्टर समना कासमी, डॉक्टर बेलाल शेख, डॉक्टर अवैस भट्ट, हमजा एजाज और डॉक्टर रेहान अहमद ने जजिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में शरीक तलबा ने कहा कि तकरीरी मुकाबलों से न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई होती है, बल्कि इन्हें एतमाद के साथ आगे बढ़ने के मौके भी मुयस्सर आते हैं। City Taaleem was brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
अदालती कार्रवाइयों पर एक नज़र सिटी अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट ने पोलियो वैक्सीन से मुताल्लिक केस निपटाते हुए महकमा सेहत को हुक्म दिया है कि कतरे पिलाते वक्त बच्चों के वालिदैन को वैक्सीन के मयारी होने के बारे में आगाही दी जाए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने के लिए मज़ीद अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि हर पाकिस्तानी बच्चा इस मर्ज़ से महफूज रह सके। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में वैक्सीनेटर सुलेमान की पटिशन की समाअत हुई। अदालत में डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर तनवीर अहमद, ईडीओ हेल्थ डॉक्टर इनाम अली और महकमा सेहत के दीगर अफसरान पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हुक्म दिया गया था कि वो पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से कबल बच्चों के वालिदैन को उसके मयारी होने से मुतालिक आगाह करें और उन्हें बताएं कि आइस बॉक्स में रखी गई पोलियो वैक्सीन मयारी है। जब तक आइस बॉक्स पर सफ़ेद निशान मौजूद है ये वैक्सीन मयारी ही रहेगी और जब सफ़ेद रंग अपनी रंगत बदल लेगा तो ये गैर मयारी हो जाएगी। बच्चों के वालिदैन को आगाही दी जाए ताकि वो बच्चों को बिला झिझक पोलियो के कतरे पिला सकें। अदालत में बताया गया कि पोलियो कतरे न पिलाने के इल्ज़ाम में मुअत्तल होने वाले दरख्वास्त गुजार सुलेमान को बहाल कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल सेशन जज की अदालती बैलफ ने थाना शेराकोट में छापा मारकर एक शहरी मकसूद अहमद को गैर कानूनी हिरासत से बाज़याब करा लिया। अदालत ने उसको आज़ाद करते हुए CCPO को SHO शेराकोट और सब इंस्पेक्टर राना अमजद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। तारिक महमूद जरकाम की अदालत में शेराकोट के रिहायशी रमज़ान नामी शख्स ने अपने वकील चौधरी इश्तियाक एडवोकेट की वसासत से हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि थाना शेराकोट पुलिस बगैर किसी मुकदमे के मकसूद अहमद को हाई कोर्ट के अहाते से उठा कर ले गई है। अदालत से इस्तदा है कि मकसूद अहमद को बाज़याब कराया जाए। अदालत ने फौरी बैलफ मुकर्रर किया, जिसने थाना शेराकोट पर छापा मारा और मकसूद अहमद को तहवील में लेकर अदालत में पेश किया। अदालत ने चौधरी इश्तियाक एडवोकेट के दलाइल के बाद मकसूद अहमद को रिहा कर दिया और CCPO को हुक्म दिया कि SHO शेराकोट और सब इंस्पेक्टर राना अमजद के खिलाफ पुलिस कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। रिहाई के बाद मकसूद अहमद ने सिटी 42 को बताया कि वो हाई कोर्ट में अपने किसी अजीज से मिलने गया, जहां से पुलिस उसे बिला वजह उठा कर ले गई। एडिशनल सेशन जज ने खाड़क दवासाज फैक्ट्री के मालिक जुबैर इकबाल की अबूरी जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद ने खाड़क में मुनहदिम होने वाली फैक्ट्री के मालिक जुबैर इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए एडिशनल सेशन जज अंजुम रज़ा सैयद की अदालत में भिजवाई थी। अदालत में मुलजिम मुद्दई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल रिकॉर्ड कराए, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम जुबैर इकबाल की जमानत मंजूर करते हुए इसे 2 लाख रुपए के मुचल्लके जमा कराने का हुक्म दिया। एडिशनल सेशन जज अंजुम रज़ा सईद की अदालत में दरख्वास्त जमानत भिजवाने से पहले इसकी समाअत एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद जरकाम ने की, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर तारिक महमूद जरकाम ने दरख्वास्त पर फैसला देने से इनकार करते हुए दरख्वास्त जमानत को सेशन जज लाहौर को वापस भिजवा दिया था। सेशन जज ने इसे एडिशनल सेशन जज अंजुम रज़ा सैयद की अदालत में भिजवा दिया। जुमेरात को अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद जुबैर इकबाल की जमानत मंजूर कर ली। कारोबारी उतार चढ़ाव से मुताल्लिक कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी बिजनेस में। वफाकी ऐवान हाई सनत और तिजारत ने सनतों को मौसम सरमा में बंदिश से बचाने के लिए हुकूमत से घरेलू सार्फिन के गैस पर पुरतैश इस्तेमाल पर 1000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों को CNG की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया है। वफाकी ऐवान हाई सनत और तिजारत के नायब सदर अजहर मजीद शेख ने रीजनल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौसम सरमा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग की नवीद सुना दी गई है। सनतें बंद हुई तो 1.5 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और कौमी खजाने को भी गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वसाइल की दुरुस्त तकसीम के जरिए सनतों को बहरानी कैफियत से निकाला जा सकता है। घरेलू सार्फिन को सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए गैस दी जानी चाहिए। गीजर और हीटर्स का गैस पर इस्तेमाल तर्क करने की पॉलिसी बनाई जाए। अजहर मजीद ने कहा कि इस पॉलिसी पर अमल करके 70% सनतों को गैस दी जा सकती है। मुईशत खुद मुख्तार होगी तो गैर मुल्की कर्जों से निजात मिलेगी और हकीकी खुद मुख्तारी हासिल होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा भट्टी ग्रुप के सदर मोहम्मद अशरफ भट्टी ने कहा है कि सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह और CCPO असलम तरीन ताजरों को भत्ता माफिया की जानिब से मिलने वाली धमकियों का फौरी नोटिस लें ताकि लाहौर को कराची बनने से बचाया जा सके।
लाहौर ईवान सनअत व तिजारत में ट्रेड लाइसेंस कमेटी का इजलास मोहम्मद अशरफ भट्टी की सरबराही में मुनक़िद हुआ, जिसमें मियाँ तारिक फ़िरोज़, हाजी ताहिर नवीद, ज़हीर ए बाबर, मियाँ खलील अबीर, चौधरी अयूब, तलाल भट्ट, मलिक फ़ारूक हफीज़, मलिक मकसूद, शेख अरशद, हाजी इलियास, हाफिज़ रिजवान भट्ट और हाजी ग़ुलाम रसूल समेत दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद अशरफ भट्टी ने कहा कि मुल्की माशी हालात और हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जो के बाइस आज छोटा ताजर इतना पिस चुका है कि उसे अपना कारोबार चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना है। उन्होंने कहा कि लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में, बाज़ारों में भत्ता माफिया सरगर्म हो चुके हैं और अगर भत्ता माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की गई तो आने वाले दिनों में शहर में भी कराची जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मोहम्मद अशरफ भट्टी ने मज़ीद कहा कि शहर की मार्केट्स और बाज़ारों में इंतज़ामिया की मुदाखलत को कम से कम किया जाए ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि मार्केट और बाज़ारों में एक मरतबा फिर से सूदखोर माफिया भी सरगर्म हो चुका है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस मैच में क्रिकेट सेंटर को 138 रन से हरा दिया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में खेले गए तीसरे और आखिरी प्रैक्टिस मैच में अंडर 19 टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 45 ओवर्स में 6 विकेटों पर 266 रन बनाए। इमामुल हक 77, मोहम्मद नवाज 68 और सईद अली 43 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। क्रिकेट सेंटर के आसिम खान और रमीज आलम ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में क्रिकेट सेंटर की पूरी टीम 128 रन पर पवेलियन लौट गई। कामरान अकमल 42, आदिल अकरम 28 और उमर अकमल 17 रन बनाने में कामयाब हुए। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन ने 3 से 6 सितंबर तक दूसरी एशियन मास्टर स्क्वाश चैंपियनशिप मुनक्किद करवाने का ऐलान कर दिया। इवेंट में शिरकत के लिए एंट्री की आखिरी तारीख 3 अगस्त मुकर्रर की गई है। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में टूर्नामेंट डायरेक्टर करामत अली चौधरी ने मास्टर स्क्वाश चैंपियनशिप के इनेकाद के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर लाहौर डिस्ट्रिक्ट स्क्वाश एसोसिएशन और डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल, पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक राना, नायब सदर पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन सुहेल खान और इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शहीर बुखारी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए करामतुल्लाह चौधरी ने कहा कि एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में भारत, हांगकांग, बहरीन, नेपाल, सिंगापुर और मलेशिया की टीमें शिरकत करेंगी। करामतुल्लाह चौधरी ने कहा कि पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स और लाहौर जिमखाना में खेले जाने वाले इस इवेंट में मजमूई तौर पर 9 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे और इस इवेंट के तमाम मैचेस का फॉर्मेट बेस्ट ऑफ 5 होगा, जबकि हर खिलाड़ी एक दिन में 2 मैचेस खेलेगा। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट के इनेकाद से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर होगा और दीगर खेलों के लिए भी गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद की राह हमवार हो सकेगी। यू स्लिम क्रिकेट क्लब ने स्टालियंस को दोस्ताना मैच में 15 रन से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। एलसीसीए क्रिकेट ग्राउंड में यू स्लिम क्लब ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 275 रन बनाए। मोहसिन नदीम 72, मोहम्मद नुमान 62 और मोहम्मद अजीम 56 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। मुंदे मुकाबिल टीम के फैसल जावेद 4, अवैस मुनीर 3 और हैदर अली बट ने 2-2 विकेटें हासिल की। मुकर्रर हदफ के ताकुब में स्टालियंस क्लब की टीम 260 रन पर ढेर हो गई। कप्तान मंसूर हमीद 50 और आमिर जबील बाजवा 64 रन बना सके। दूसरी जानिब यू सलीम क्लब के अहमद रसा ने 4, जबकि कौमी विमेन क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली स्पिन बॉलर एलिजबेथ खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।